Assalamu alaikum, dears. I hope you all are doing well. I welcome you in this session. In this session, we are going to discuss the admission of partners कि हम एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप के अंदर किस तरह से एक नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो उसके लिए जो पार्टनरशिप डीड होगी वो दोबारा से लिखी जाएगी। They have to write a new partnership deed under agreed terms and conditions, pro and cons of the business. तो business जो उसके assets होंगे, liabilities होंगे, वो accordingly adjust होंगे under given terms and conditions on which the all partners would be agreed. Here we have a case. Suppose the following balance sheet of ABC Enterprises as on 31st December 2003. Note A, B, and C are equal partners. Means that they are dividing profit and loss equally. That's why we have mentioned here they are equal partners. So this is the balance sheet of ABC Enterprises as on 31st December 2003. Here there is asset position. Total assets worth $60,000 and liabilities and equity sections worth also 60,000. And here the sub accounts are there, and the assets sub account are also there accordingly. As on the date, they decided to admit D under the following independent assumption: make journal entries on admissions of D and balance sheet of ABCD Enterprises. So we need to, which is required, that we have to admit the a new partner, Mr. D, under the following assumptions, and we need to prepare some journal uh, entries in order to admit the B, and we need to prepare a new balance sheet. So in this case, the condition to admit Mr. B is as that the value of assets and liabilities will remain as per books. These are the values of assets and these are the value of liabilities. So he is saying in this case they would remain both assets and liabilities as per their book value. There is no change in assets account and the liabilities accounts. So D will bring cash $30,000. D has to bring $30,000 and he will be given D has to bring 30,000 cash, $30,000 cash, and he will be given 1/4 share in the total business. What he's bringing? He is bringing cash. It means we need to add the cash and we have to find the total worth of the business now. अब कैश है हमारे पास, let's suppose कैश है जी हमारे पास $30,000। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश का जो है ना टी अकाउंट बना लेंगे। अब कैश हमारे पास पहले 40,000 से डेबिट है, अब कितना है 30,000 डेबिट, तो टोटल कैश की जो वर्थ हो गई वो कितनी होगी 70,000। तो 70,000 और 20,000 ये, तो टोटल वर्थ ऑफ बिजनेस जो है वो अब बन जाती है $90,000। ठीक हो गया, समझ आ गई ना बात आपको कि कैश अब वो लेकर के आ रहा है $30,000। he is bringing cash
फॉर $30,000। तो ये $30,000 से हमने इसको डेबिट कर दिया। तो कैश का अब हम क्या करेंगे, टी अकाउंट बना लेंगे। तो अब टी अकाउंट अगर हम बनाएं तो 40,000 से डेबिट है और 30,000 से फिर डेबिट हो जाता है, तो टोटल कितना हो जाता है 70,000 और 20,000 ये है, तो टोटल वर्थ ऑफ बिजनेस बन जाती है 90,000। तो 90,000 का 1/4 यानी हमने कहा है कि शेयर जो है वो मिस्टर डी को मिलेगा। तो शेयर ऑफ डी जो है, अब हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट इज इक्वल टू 90,000 टोटल बिजनेस की वर्थ है, उसका इसको 1/4 मिल रहा है, यानी 4 पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 22,500 जो है ना ले रहा है, और वो कैश ले करके आ रहा है $30,000। तो अब हम $30,000 से माइनस कर देंगे $22,500। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग कैश है वो क्या है, $7,500 बच गया है। तो अब ये डॉलर्स क्या है, इनकम के तौर पे जनरेट हो रहे हैं। इट मींस कि दिस वुड गो टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, कि ये बैलेंस जो है अमंग द जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनके दरमियान डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कैपिटल ए कितना है, $30,000। कैपिटल बी जो है वो $15,000 है, और कैपिटल सी जो है हमारे पास $8,000 है। अब यहाँ से जब हम इनमें इक्वली डिवाइड करेंगे 75,000 $7,500 डिवाइडेड बाय 3, तो 25,000 ईच विल गेट द बैलेंस। अब इसके बाद न्यू कैपिटल बैलेंस जो होगा फॉर कैपिटल ए, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू $32,500। तो अब ये न्यू बैलेंस है कैपिटल ए का। कैपिटल बी का 17,500, और इसी तरह हमारे पास जो कैपिटल सी है उसको हमने ऐड किया तो वो 10,500 है, और इस तरह से हमारे पास कैपिटल डी जो है उसका न्यू बैलेंस जो है वो $22,500, जो ऑलरेडी हम उसका शेयर फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब ये जो 2500 जो है वो इंक्रीज हुआ है इन ईच अकाउंट, सो वी वुड मेक द एडजस्टिंग एंट्री ओवर और जर्नल एंट्री ओवर हेयर। तो उसमें सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, कैपिटल ए बी एंड सी, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ करके आएंगे कैपिटल ए बी सी एंड डी। अब क्या हुआ है, $2,500 से ये क्रेडिट हुआ है, ये भी $2,500 से मज़ीद क्रेडिट हुआ है, और ये भी $2,500 से मिस्टर सी भी क्रेडिट हुआ है, और 22,500 से मिस्टर डी जो है वो क्रेडिट हुआ है, उसका जो बिजनेस में वर्थ उसको जो मिली है। तो अब इस तरह से ये जनरल एंट्रीज हमने की। तो जनरल एंट्री की हमने, तो अब हमारे पास
यानी जो एग्जिस्टिंग बैलेंसेस थे कैपिटल में, उनमें हमने ये जो अकाउंट्स क्रेडिट हुए हैं वो ऐड करके तो ये न्यू बैलेंसेस फाइंड आउट कर लिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, न्यू बैलेंस शीट में पुट कर देंगे और न्यू बैलेंस शीट पर करेंगे। अब कैश कितना है जी, 40,000 ओपनिंग बैलेंस है और यहाँ से 30,000 क्या हो रहा है, मजीद एड अप हो रहा है। तो कैश बैलेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा अब, $70,000। और इसका जो सम है ये टोटल 90,000, यानी टोटल एसेट्स की वर्थ, क्योंकि ऑल अदर एसेट्स जो हैं उसने कहा है कि विल रिमेन एज पर बुक वैल्यू, देयर इज नो चेंज इन दिस एसेट। So the total worth of the assets is now equal to 90,000. Accounts payable would remain same, but here it is a change, $32,500। तो यहाँ पे हम इसको $32,500, अब इसमें भी ये हमारे पास 17,000 और $500 बनते हैं। और कैपिटल सी जो है वो हमारे पास $10,500। इसका न्यू बैलेंस टी अकाउंट अगर हमने बनाया है ये वाला, तो ये हमें न्यू बैलेंस मिला। और फिर इसी तरह से हमारे पास जो कैपिटल डी है उसका न्यू बैलेंस हमारे पास $22,500। अब इसको भी जब हम सम करते हैं तो हमारे पास जो न्यू बैलेंस आता है इट बिकम्स, ये अभी हम चलें फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला ऐसे इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस is equal to 90,000. So you can see over here total capital, sorry, the total assets is equal to total liabilities 90,000. So in this case we have admitted the D. D is bringing more than his share and the difference जो है वो क्या कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को एज अ बोनस जो है ना वो जा रहा है। और बी जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट से कम शेयर जो है ना यहाँ पे इंजॉय कर रहा है। ही इज ब्रिंगिंग 30,000 बट ही इज गेटिंग शेयर among this partnership about $22,500। तो यहाँ पे ये हमारा केस कंप्लीट हो जाता है और इस एजम्पशन के तहत। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एजम्पशन जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स को उसको देखते हैं।